Hello students, you all are welcome in grade 6, subject maths, topic chapter number 12, ratio and proportion, and today's subtopic, that is proportion. Student, please open page number 252. Start the term proportion. So we look the definition, students. If two ratios are equal, then you can say they are in proportion. Say for example, 2 ratio is A is to B, means A upon B. है ना, is equal to C is to D, right? So if two ratios are equal, then you can say it is in proportion. Say for example, are the given ratio example number 9 है, right? This is, are the given ratio in proportion? So given ratio देखो 30, 40, 45 and 60. It means that this is A, this is B, this is C, this is D, right? Here I have written A equal to 30, B equal to 40, C equal to 45, D equal to 60. चलो अभी A upon B करते हैं पहले, right? So A upon B means 30 upon 40, 0 0 cancel, you will get 3 upon 4 answer. Similarly, C upon D. So 45 upon 60 means 45 का factor 15 3 जा 45, 60, 15 4 जा 15 15 gone, 3 upon 4. So you can say that here A upon B is equal to C upon D. Ratios are equal means they are in proportion. तो आपको ऐसे करना है, correct? Move to example number 8. Are the ratios 25 gram is to 30 gram and 40 kg is to 48 kg in proportion? तो आपको पहले ये रेशियो लेना है. चलो 25 ग्राम इंटू 30 ग्राम. चलो ग्राम ग्राम सेम है तो ग्राम ग्राम कट. इसका फैक्टराइज करो या डायरेक्ट करो, जैसे भी करो. 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 5 गॉन. सो 5 upon 6. ओके. Next ratio 40 kg upon 48 kg, kg same, kg gone. 40 factor 5 8 za 40, 8 6 za 48, 8 8 gone, so 5 upon 6. Hence the ratios are equal, means from above both ratios are equal, so they are in proportion. Very simple. Now do the ratios 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minutes. Form a proportion. तो देखते हैं, चलो 15 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर. यहां देखो यूनिट्स अलग है, सेंटीमीटर मीटर. तो हमने क्या कर दिया, हियर यूनिट्स आर नॉट सेम, तो यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा. तो 15 सेंटीमीटर, यहां मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर देन गॉन. तो 15 अपॉन 100 इंटू 2 दैट इज 200. बराबर. इसको फैक्टराइज करो, इसको सिंप्लीफाई रिड्यूस फॉर्म में लाओ. 5 3 जा 200 जा. ओके. देन 5 5 गॉन. बराबर. सो 3 यानी 100 का फैक्टर क्या है 25 जा 5 5 गॉन. सो 3 अपॉन 22 जा 40. तो 3 upon 40. ओके. पहले रेशियो. दूसरा 10 सेकंड इंटू 3 मिनट्स. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. यहां भी रेशियो अलग अलग है, एक सेकंड में एक मिनट में है. तो मिनट्स का सेकंड में देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया. रेशियो का पहला रूल ही है, राइट? कंसेप्ट ही है कि रेशियो आपको यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए, तो मैंने सेम कर दिए. तो नाउ 10 360 3 multiplied by 60, that is because 3 minutes 1 minute is equal to 60 second. तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड गॉन. सो 10 3 into 60, 10 6 जा 60. सो अवर आंसर इज 1 upon 18. तो यहाँ क्या हुआ बच्चों? Hence 3 upon 40 is not equal to 1 upon 18. So they are not in proportion. चलो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2. ओके. उसमें दिया है आपको कि वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. तो वैसे ही करना है जैसे हमने किया. एक मैं करता हूं, बाकी का आप करो. 15 45 40 120 ए बी सी डी, राइट? फिर ए अपॉन बी करो. बराबर. तो ए अपॉन बी क्या हुआ? 15 अपॉन 45 दैट इज 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45, 5 5 गॉन. सो आंसर विल बी, एंड 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 upon 3. So A upon B is over. Now C upon D. 40 upon 120. 0 0 gone. 4 upon 12. So 1 upon 3.
So 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 means they are in proportion. Like this way you can do B, C, D, E and F by yourself, right? Same method. Question number 2. 16 is to 24. ये 4 जो है ना 4 dots means equal to sign. Means are they equal in proportion? Are they in proportion? वही है सेम ऊपर जैसा. तो 16 अपॉन 24 करो. तो 16 अपॉन 24 मीन्स आप सिंप्लीफाई करो यू विल गेट 2 अपॉन 3. 20 अपॉन 30 को भी सिंप्लीफाई करो यू विल गेट 2 अपॉन 3. हेंस बोथ द रेशियोज आर इक्वल मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन एंड इट इज ट्रू. इंस्ट्रक्शन अलग है बाकी मेथड सेम है. ओके Here question number 2 B, C, D, E and F that you can do by yourself. Question number 3 are the following statements are true. Okay, 40% upon 200 persons that is 4 upon 20 1 upon 5. Same method are the following statements are true means वही आपको देखना है वो proportion में है कि नहीं. 40% is to 200%. तो इसको सिंप्लीफाई करो 0 0 कैंसल 4 अपॉन 20 मीन्स 4 5 20 1 अपॉन 5. सिमिलरली 15 रुपीज इज टू 75 रुपीज वही है. तो 15 रुपीज इन 75 मीन्स 15 5 75 1 अपॉन 5 मीन्स हेंस द रेशियोज आर इक्वल दे आर इन प्रोपोर्शन मीन्स सो इट इज ट्रू. बस सेम मेथड है इंस्ट्रक्शन अलग है काम सेम ही करना है. इधर क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. In question number 4, 25 centimeter is to 1 meter and 40 rupees is to 160. तो पहले A, B, C, D कर दो राइट. इसके बाद कम ओवर हियर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर यूनिट डिफरेंट है तो उसको सेम कर दो. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो 25 अपॉन 100 1 अपॉन 4 होता है. सिमिलरली हियर ये तो सेम ही है 40 अपॉन 160 0 0 गॉन 4 1 जा 4 4 जा 16 सो 1 अपॉन 4 हियर दे आर इक्वल. और यहां आपको क्या करना है यू हैव टू शो देम एक्सट्रीम एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडल टर्म. बराबर. तो वो तो बहुत इजी है. बराबर. ये देखो आप ये दोनों है ना एक्सट्रीम टर्म है. 25 सेंटीमीटर इज टू 160 रुपीज और ये 1 मीटर इंटू 40 वो आपकी मिडल टर्म है. ओके तो वही लिखने का है लास्ट में. सिंस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. अभी आपको एक्सट्रीम टर्म्स लिखना है. तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है मैंने अभी अभी बताया. ए एंड डी मीन्स 25 सेंटीमीटर एंड रुपीज 160 इट इज एक्सट्रीम टर्म. मिडल टर्म्स क्या है 1 मीटर एंड 40 रुपीज राइट. और आपको ऐसे बी सी डी अपने आप करना है राइट. होमवर्क इस एग्जैक्टली ऐसे. ओके नाउ अनदर पॉइंट दैट इज यूनिटरी मेथड. Definition. The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of unit it is known as unitary method. बराबर. तो वो कैसे है तो हम सपोज आपको ऐसा दिया है कि भाई 5 बनानास कॉस्ट इज 10 रुपीज. बराबर. तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 banana cost is 10 rupees therefore 1 banana cost is how many. So आप एक का ढूंढेंगे ना द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. एक बनाना का आपने प्राइस ढूंढा कितना होगा 2 रुपीज ऐसे. तो पहले एक का ढूंढो बाद में वो बोलेंगे कि भाई तो फिर 100 बनाना का कितना. तो 1 बनाना इज इक्वल टू 2 रुपीज देयरफॉर 100 बनाना इज इक्वल टू 200 रुपीज लाइक दिस वे. तो 2 स्टेप में आपको आंसर करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then you can find out the value of many units. Okay, it is unitary method. Barabar. This unitary method that we use in our generally in our life. Okay. Okay, example number 11. If the cost of 6 can of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? So dear students, you have to find out the cost of 6 can is given. You have to find out the cost of 1 unit means 1 cans. So 6 can is equal to 210 therefore 1 can is equal to how many. बराबर. तो 1 can का हमने तो यहाँ सिंप्लीफाई कैसे करने का 1 इंटू 210 इसका मल्टीप्लाई करो और 6 को डिनोमिनेटर में रखो राइट. तो ये आपका यूनिटरी मेथड फॉर्म है.
सो 210 इंटू 1 अपॉन 6. तो अभी इसको 210 डिवाइड बाई 6 करो, यू विल गेट दिस डिवीजन 35. सो 35 इट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कैन. अभी वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स. तो एक मेथड एक स्टेप हो गया. ये दो स्टेप में आपका आंसर होता है, राइट. सो 1 कैन इज इक्वल टू 35 रुपीज. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट 4 कैन्स. 4 कैन इज इक्वल टू हाउ मेनी? सो 35 इंटू 4, बराबर, और अपॉन 1. वो अपॉन 1 मीन्स वो तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. सो 35 इंटू 4 अपॉन 1. सो 35 4 जा 140. सो आंसर लिखो, द कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस इज रुपीज 140, लाइक दिस वे. Example number 12. Example number 12. A motorbike travels 220 km in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? So apply your unit method step number 1. पहले 1 का ढूंढो, 1 यूनिट का. पेट्रोल तो आप लिख दो, इट इज गिवन इन लीटर्स, डिस्टेंस गिवन इन किलोमीटर. 5 liters is equal to 220 kilometer. Therefore, 1 liter is equal to how many? So 220 into 1 upon 5 as per our unitary method. So when you do 220 divide by 5, you will get 44 किलोमीटर्स. आपने क्या ढूंढा? क्वेश्चन मार्क कहाँ है? किलोमीटर के नीचे. तो 44, यानी 1 लीटर का 44 किलोमीटर आया. एंड वी हैव टू फाइंड आउट 1.5 liters equal to how many kilometers distance. So 1 liter is equal to 44 kilometer. Therefore 1.5 liters is equal to how many kilometer? ये हमने कर दिया, because 44 into 1.5 upon 1. So इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, you will get 660. Then you have to cut 1 decimal point from right to left. तो यहाँ एक डेसिमल कट हो गया, you will get the answer 66 kilometer. Okay. So the answer is the motorbike covers 66 km within 1.5 liters. Example number 13. If the cost of dozen soap is 153 rupees and 60 paise, what will be the cost of 15 such soaps? So first of all you have to find out the cost of one soap. और 1 dozen में कितने आर्टिकल होते हैं बच्चों? 12 आर्टिकल्स, राइट. ओके, तो पहले आप एक सोप का प्राइस ढूंढो, देन यू हैव टू फाइंड आउट द 15 सोप्स प्राइस. ओके, दिस इज अ सॉल्यूशन. 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्टिकल? 12 आर्टिकल. तो 12 शॉप इज इक्वल टू 153.60 रुपीज. देयरफॉर 1 शॉप इज इक्वल टू हाउ मेनी? बराबर, ये 1 डजन शॉप का प्राइस है. 1 डजन में 12 आर्टिकल्स आते हैं, तो 12 शॉप्स, बराबर. सो 153 इंटू 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो वो करेंगे, यू विल गेट दिस डिवीजन, राइट. Okay, so 12.80. Now 1 stop is equal to 12.80. Therefore 15 stop is equal to how many? So here is the answer, 15 into 12.80 upon 1. So 192 rupees. बराबर, decimal cut करो right से left. So the cost of 15 stop is rupees 192. Like this way you can count. Dear students, move to example number 14. Cost of 105 envelope is 350 rupees. How many envelopes can be purchased for 100 rupees? Okay. So first of all, we have to find out the one envelope price. Now envelopes and cost. 105 envelope is equal to 350 rupees. Therefore 1 envelope is equal to how many? As per our unitary method, 1 into 350 upon 105. So you will get 10 अपॉन 3. तो ऐसे ही रहने दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. तो 1 एनवेलप का प्राइस 10 अपॉन 3 आ गया. नाउ हमको वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स. तो जो ढूंढना है वो राइट साइड को लिखो. सो 10 अपॉन 3 एक एनवेलप का प्राइस, राइट. देयरफॉर 100 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी, है ना. 100 रुपीज का परचेस किया है, तो रुपीज के नीचे रुपीज, तो नंबर ऑफ एनवेलप कितने? तो 1 इंटू 100 अपॉन 10 अपॉन 3. सो यहाँ 1 इंटू 100 अपॉन 10 अपॉन 3. ये 10 अपॉन 3 है ना, देखो डिवीजन का डिवीजन का डिवीजन, तो ये लास्ट में है ना, वो नंबर ऊपर जाएगा, ये यहाँ याद रखो बराबर. सो 100 इंटू 3 अपॉन 10, 10 10 100, यू विल गेट 30 एनवेलप्स. ये यहाँ बराबर याद रखना. हाँ, डिवीजन का डिवीजन का डिवीजन, तो लास्ट जो नंबर होता है ना, वो दैट विल बी गोज अप, बराबर. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, उसका भी डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर विल बी गोज अप.
then it becomes numerator. वो याद रखो. Example number 15. A car travels 90 km in 2 integer 1 upon 2 hours. Then number 1, you have to find out how much time is required to cover 30 km within same speed, and find the distance covered in 2 km with the same speed. दो क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं. You see the answer. So according to our unitary method, 90 km is equal to 2 integer 1 upon 2 hours. So 1 kilometer is equal to how many? पहले यूनिट का ढूंढो. तो हमने ढूंढ लिया 2 इंटीजर इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 90. तो क्या हो गया 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 2. सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. अभी देखो ये 2 ऊपर है बराबर, तो ये 2 नीचे आ जाता है बराबर. 5 अपॉन 2 अपॉन 10, तो ये 2 नीचे आ गया. सो 1 इंटू 5, सो 2 विल बी मूव डाउन बराबर. 2 इंटू 90, तो ये भी याद रखो आप. 5 अपॉन 2 90 जा 180 आवर्स. इसको ऐसे ही रहने दो, आगे मत जाओ. चलो सेकंड स्टेप में भी अभी काम करना है हम. यू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली. यू हैव टू फाइंड आउट 30 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. तो 1 किलोमीटर का ढूंढ लिया. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन 180 आवर्स. देयरफॉर 30 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. सिंप्लीफाइड दिस. 5 इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 30 अपॉन 1 बराबर. ये देखो फिर से ये 180 नीचे आ गया है ना. तो 5 इंटू 30 अपॉन 180, 0 0 गॉन, 3 6 जा 18. So now upon 5 upon 6 will come, but this is given in hours. We have to convert into minutes. So 1 hour is equal to 60 minutes, right? So 5 upon 6 multiply by 60 karo, you will get 10 5 जा 50 minutes, like this way. बी में क्या ढूंढना है? फाइंड द डिस्टेंस. मीन्स चलो 5 अपॉन 180 आवर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर बराबर. जो ढूंढना है उसको राइट साइड लिखो. ये हमने ढूंढ लिया यूनिट का. देयरफॉर 2 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी. उन लोगों ने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स. तो आवर्स के नीचे आवर्स आना चाहिए. ओके. सो अकॉर्डिंग टू आवर सिंप्लीफिकेशंस 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 80. देखो डिवीजन का डिवीजन है. 180 ऊपर गया. 2 इंटू 1 इंटू 180 अपॉन 5. So 5 36 za 180 and 36 2 za 72 kilometers. Okay, so like this way you can count. Now move to exercise number 12.3. Question number 1. In that 7 meter cloth is equal to 1470. Therefore we have to find out 1 unit. 1 meter cloth is equal to how many? You will get 210. And you have to find out the 5 meter cloth price. So 1 का ढूंढ लिया. So 1 meter cloth is equal to 210. Therefore 5 meter cloth is equal to how many? So 210 into 5 upon 1, you will get 1050. Okay, like this way you can do homework. That is question number 2, 3, 4 and 5. Okay, so students till here today. Next time we will do the next topics. So have a nice day. Thank you.